Morning, students. So today we are going to start a new chapter of moral science, that is chapter 5, the simple Brahmin, page number 24. Okay, so all of you take out your moral science book, page number 24, chapter 5, the simple Brahmin. So let's start the chapter. There once lived a very simple Brahmin. He never thought for himself, he never questioned anything, and he always looked for someone to lead him. In essence, he was a man of blind faith and devotion. Okay, so एक बार की बात है, एक सिंपल सा ब्राह्मण रहता था जिसको हम हिंदी में ब्राह्मण भी कहते हैं. ओके, और वो बहुत ही अच्छा इंसान था. वो कभी खुद के लिए नहीं सोचता था. ओके, और वो एक कह सकते हैं ही वॉज अ वेरी ब्लाइंड फेथ, मतलब किसी के ऊपर भी जल्दी भरोसा करना, किसी की बातों पे आना, ऐसा इंसान था. ओके, एंड ऑल्सो ही वॉज वेरी डिवोटेड टू गॉड, मतलब होता है ना भगवान के लिए समर्पित, भगवान के लिए सेवा करना, पूजा पाठ करना. ठीक है, वैसे इंसान थे ये. One day the Brahmin went to another village nearby. His purpose was to find goat and bring it back for a sacrifice at his temple. After he had purchased the goat, he thought, I must be careful. There are brigands along the way. I think I will carry the goat on my shoulders. He hefted the goat into his shoulder and began his journey. So one day what happened, the Brahmin went to the nearby village. Why? For what purpose he went there? To find a goat. ठीक है, because he want to sacrifice the goat on a temple. ठीक है, किसी किसी का मन्नत रहता है ना, मंदिर में बकरा का बलि चढ़ाना, उसी चीज़ के लिए ये बकरा लेने गए थे एक विलेज में. ओके, सैक्रिफाइस करने के लिए टेम्पल में. आफ्टर दैट ही परचेस्ड अ गोट. ठीक है, वो एक गोट खरीद लेता है. देन ही थॉट आई मस्ट बी केयरफुल. गोट खरीदने के बाद उसको लगा कि मुझे बहुत ही सावधानी बरतना पड़ेगा, बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे ब्रिगेंड्स होते हैं. ब्रिगेंड्स का मतलब होता है रॉबर, जो लूट लेते हैं लोगों को, लोगों की चीज़ों को, उसको ब्रिगेंड्स कहते हैं. ठीक है, सो इन्होंने सोचा कि मैं गोट को अपने शोल्डर में कैरी करूँगा. ओके, सो ही hefted the goat into his shoulder and began his journey. Okay, so he started his journey. The Brahmin was right. There were 3 brigands along the way who saw him carrying the goat. Okay, the Brahmin was right. मतलब वो पहले ही सोचा था कि हो सकता है मुझे रास्ते में brigands मतलब रॉबर मिल सकते हैं. And he was right because there was 3 brigands. वहाँ पे 3 brigands थे. ठीक है, जो इसको पहले से ही देख के रखे थे इसको लूटने के लिए. ठीक है, so they figured that the Brahmin was simpleton, quickly conferred and came up with a plan to get the goat from the Brahmin. उस ये जो 3 brigades जो खड़े हैं, you can see there are 3 brigands who are standing here and they figured that the Brahmin was simpleton, मतलब होता है foolish, जिसको बोल सकते हैं जो जल्दी बेवकूफ़ बन सकता है. वो उनको पहचान लिए थे कि ये ब्राह्मण ऐसे ही हैं. Okay, so they came up with a plan to how to get a goat from this Brahmin. हम इस ब्राह्मण से गोट को कैसे ले सकते हैं, एक प्लान उन लोग सोचते हैं तीनों मिलके. ओके, सो they went in different direction to perform their separate task. Okay, so these 3 people went into 3 different direction, okay, to perform their task. सबका अपना अपना वो लोग प्लान बना लिए थे, क्या किसको बोलना है, कैसा करना है, वो लोग सब प्रिपेयर करके तीनों अपने अपने डायरेक्शन में चले जाते हैं. After walking for a while, the Brahmin saw this man waiting on the path. He gripped his goat tighter, worried that this might be a brigand. So what happened, after walking some time, the Brahmin saw a man waiting on the path. एक रास्ते में एक इंसान को वेट करते हुए इसने देखा. तभी ब्राह्मण समझ गए थे हो सकता है ये ब्रिगेंड्स हो. ओके, तो वो अपना गोट को और टाइट पकड़ लेता है कि मेरे से छुड़ा के ले ना जाए. ठीक है, सो दिस वॉज द फर्स्ट ब्रिगेंड. ये पहला ब्रिगेंड था. ओके, the brigand bore to the Brahmin with all the difference he could muster. Okay, after introducing himself, the brigand said, may I ask a question, oh excellent one?
Okay, so what happened? The first brigand came near to the Brahmin and he bowed to the Brahmin. मतलब वो बहुत ही respectfully, मतलब वो मतलब सामने वाले को हम respectfully जब मिलते हैं तो हम अपना सर झुका के नमस्ते या प्रणाम करते हैं, वैसा उन्होंने भी किया. ठीक है, और पूछते हैं क्या मैं एक क्वेश्चन कर सकता हूँ. द ब्राह्मण responded, sure, go ahead fellow traveler. वो बोले sure, you can ask a question. Okay, so he asked a question. So the first brigand asked, why are you carrying a dog on your shoulder? Then he asked to the Brahmin, then why you are carrying a dog on your shoulder? तुम अपने कंधे पे एक डॉग को रख के क्यों ले जा रहे हो, क्यों कैरी कर रहे हो? Okay, so the Brahmin huffed, this is not a dog, and walked off. However, the brigand's questions did put doubt in a Brahmin's mind. Okay, so what happened? ये सुनते ही ब्राह्मण को थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया, मतलब चिड़चिड़ा के बोलने लगा, दिस इज़ नॉट अ डॉग, ये डॉग नहीं है, और चलते हुए निकल गया. ठीक है, पर ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा तो डाउट ब्राह्मण के माइंड में डाल चुका था कि आखिर ये इंसान ऐसा क्यों पूछा कि वाई यू आर कैरिंग अ डॉग इन योर शोल्डर, पर मैं तो गोट को रखा हूँ, फिर ये डॉग है करके क्यों पूछा. सो उसके माइंड में कुछ तो डाउट पैदा हो चुका था. ओके, सो he shrugged it off and kept going. उसको मन से थोड़ा हटा के और वो अपना आगे बढ़ने लगा. A little while further, the Brahmin came upon another man, okay, who was the second brigand. The second brigand was even more cordial and deferential to the Brahmin. Okay, so what happened? Now the second brigand came near to the Brahmin. और वो भी बहुत ही रिस्पेक्टफुली ब्राह्मण से मिलता है. ठीक है, बात करता है. एंड स्टिल आफ्टर इंट्रोडक्शन द सेकेंड ब्रिगेड आस्क्ड द सेम क्वेश्चन फ्रॉम द ब्राह्मण, व्हाई वुड एनीवन कैरी अ डॉग ऑन हिज शोल्डर, ही सेड. ओके, सो आफ्टर द इंट्रोडक्शन the second brigand also asked the same question to the Brahmin, that why anyone carrying a dog on his shoulder. क्यों, मतलब कोई डॉग को अपने शोल्डर पे कैरी क्यों करेगा, ऐसा वो क्वेश्चन करता. ही सेड. This shook the Brahmin even more because for him this was the second stranger telling him that he had a dog on his shoulder. Okay, this shook the Brahmin even more. ये कुछ और झटका लगा. ठीक है, इससे वो और disturbed हो गया. कौन? ब्राह्मण. Why? Because he was disturbed by this time because it was the second person who was telling him that why you are carrying a dog in your shoulder. ठीक है, पहला जब इंसान बोला उसको थोड़ा माइंड में लगा, पर उतना नहीं लगा जितना दूसरी बार में लगा. क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे दो लोग बोल चुके थे. ठीक है, सो ही वॉज नाउ डिस्टर्ब्ड. सो even so the Brahmin attributed it to coincidence and kept on going. Along the way he could not stop thinking about the two questions thought. ओके, सो व्हाट हैपेंड, मतलब ब्राह्मण को लगा हो सकता है ये कोइंसिडेंस हो, मतलब कोई बाई चांस वो दोनों हो सकता है एक जैसा बोल दिए हों, ऐसा कुछ होगा. ये सब सोचते हुए ऐसा वो निकलता है और छोड़ के मतलब आगे बढ़ता है. थोड़ी देर बाद आखिर उसके मन में ये सब आता ही है, आखिर क्यों ये दोनों एक ही क्वेश्चन किए. उसका माइंड डिस्टर्ब रहता है. ओके, सो ही कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट दिस थिंग्स दैट द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टू पर्सन. ओके, आफ्टर अ कंसिडरेबल बिट ऑफ टाइम वेंट बाय द ब्राह्मण केम अपॉन अ थर्ड मैन. Who was the third brigand? He was as cordial as others, and even more. Okay, now the third brigand came, और वो भी बहुत ही उससे भी पहले वाले से भी बहुत अच्छे से मतलब क्या बोलते हैं, बात करने का या रिस्पेक्टफुल बात करने का, और उस तरीके से वो प्रेजेंट किया अपने आप को. He said to the Brahmin, "O holy man, I know you are devoted to the God. I know you are committed to the skill test. Why are you then carrying this unclean animal on your shoulder? You should not have a dog so close to you." Then he told, मैं आपको जानता हूँ, आप भगवान के ऊपर समर्पित हैं, आप मतलब भगवान की सेवा करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, इतने सब मतलब बहुत ही आप मिले हुए हैं ये सब चीज़ों के लिए. तो आप एक अनक्लीन मतलब जो साफ़ सुथरा, अनक्लीन मतलब यू हैव अंडरस्टैंड, एनिमल मतलब जो कि थोड़ा
अशुद्ध है, मतलब जो साफ़ सुथरा नहीं है, उस एनिमल को आप अपने शोल्डर पे कैसे रख सकते हैं? आपको तो डॉग को अपने पास में नहीं रखना चाहिए. यू शुड नॉट कैरी द डॉग ऑन योर शोल्डर. देन वाई यू आर डूइंग दिस? एंड दिस वॉज द फाइनल स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक. और ये लास्ट एकदम क्या है, मतलब वो था जो कि एकदम तोड़ चुका था उनका मतलब बोलते हैं ना लिमिट या एक का वो है, ठीक है. सो द ब्राह्मण वॉज नाउ अटरली कन्विंस्ड दैट इट वॉज हिज आइज दैट वे मिस्टेकन एंड दैट ही वॉज इंडीड carrying a dog on his shoulder instead of a god. Okay, so now the 3% told that why you are carrying a dog, how someone carry a dog. So then he thought might be I am wrong. हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं डॉग को ही लेके आ रहा हूँ गोट के जगह पे, ठीक है. Because 3% already told him, so he thought that they were right and I am wrong. Okay, so he cursed the man who sold the animal to him. तो वो उसको मतलब भला बुरा कहता है जो उसको ये एनिमल सेल किया. Threw it on the ground and ran away to cleanse himself the Neumite river. ठीक है, वो उसको ग्राउंड पे छोड़ के, उस गोट को ग्राउंड पे रख के वो भागता है एक रिवर के पास में, अपने आप को धोने के लिए, अपने शरीर को धोने के लिए, नहाने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए. ओके, देन ऑल 3 brigands gathered soon and had a good laugh. They feasted well that day. Okay, then इन लोग का जो प्लान था 3 brigands के वो सक्सेस हो गया था. तो वो लोग सब तीनों मिल के बहुत अच्छे से हंस रहे थे कि हमने उसको बेवकूफ़ बना दिया. दे फीस्टेड वेल दैट डे. उन लोगों ने दावत बोल सकते हैं. उस दिन का खाना था उन लोग का गोट जो उन्होंने छोड़ के गया, उसको वो लोग मस्त दावत के रूप में अच्छा से खाए. ठीक है, उस दैट डे. सो दिस वॉज अ चैप्टर. ओके, और आपको ये चैप्टर 2 बार पढ़ना. यू हैव टू रीड दिस 2 चैप्टर एटलीस्ट 2 times.